Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we have a talk over assimilation, and we will learn about what is assimilation and how we assimilate the things and how we assimilate a society. After that, we will take a look over the concept of assimilation of society, how the society emerges, and how society assimilate with another society. At last, we will take a look over the acculturation. What's the concept of basic the acculturation and what is acculturation and how we acculture the things. Let's move on. Actually, assimilation is the process where one person or one group acquire the culture or acquire the identity of other group and other persons just in order to live or just in order to maintain his and her lifestyles by putting the importance and by adopting the attitude and the values and the norms and the custom and the tradition of the peoples. Actually, it's a pattern of thinking and behaving in short its own way. Basically, is the concept where we assimilate our things, our norms, our cultures, our traditions within or to or within other cultures. Assimilation is a process of interpretation where the person and the group acquire the memories, sentiments, attitude of the person or group, and by sharing their personal experience and sharing their history and sharing their personal values and sharing their cultures just in order to assimilate within one group to another group. हम एक कल्चर्स की इंटरप्रिटेशंस को, एक पर्सनस की लाइफ की इंटरप्रिटेशंस को, एक पर्सनल लाइफ एटीट्यूड को, एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस को, एक पर्सनल नॉर्म्स को, एक सोसाइटी के नॉर्म्स को, एक ग्रुप के बिहेवियर को जब दूसरे ग्रुप के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं तो एट दैट लेवल वी ट्राई टू assimilate the things. Assimilation is a process where we altitude of many persons as a unity or as a unity. हम बहुत से लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं by adopting their attitude, by adopting their nature and by adopting their experience and the cultural experience of them. Assimilation actually is the social process of individuals or the groups that and who they come or just they are come to share their same sentiments, same purpose, same experience of life. And in short, according to Nimkov, assimilation is the process whereby individuals or groups who once dissimilar become similar and identified in their interest and outlook appearance. हम आम रूटीन में जहाँ पर अपनी नॉर्म्स को, कस्टम को, ट्रेडिशंस को आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट एज सेपरेटली इंडिविजुअली और एज ए ग्रुप और इन अ सोसाइटी, हम ग्रुप की बात करें, सोसाइटी की बात करें या एक पर्सनस की बात करें, जब पर्सनस के या सोसाइटी के या उस ग्रुप की जो पर्सनल एसिमिलेशंस होती हैं, जो पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स होती हैं, पर्सनल या ग्रुप्स के जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं या जो कस्टम्स होते हैं, अगर हम उसे किसी और ग्रुप के साथ या किसी और पर्सन के साथ एसिमिलेट कर दें, अटैच कर दें, देन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ assimilation. We have two different aspects and two different types of assimilation. In a broad sense, migration of refugees from one country to another or people from rural to urban areas is included in the category of assimilation in its broadest sense. We have two types of assimilation. First, that we discuss in a broadest sense, and second, we discuss at a local sense. अगर एक पर्सन एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माइग्रेट होता है या अगर एक पर्सन अपने विलेज एरिया से सिटी एरिया में डाइवर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली द नॉर्म्स एंड द कस्टम एंड द ट्रेडिशन ऑफ द सिटी एंड द विलेजेस आर डिफरेंट एंड इवन द नॉर्म्स एंड कस्टम ऑफ वन कंट्री एंड द सेकंड कंट्री आर टोटली अपोजिट. अगर एक पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रिफ्यूज कर जाए या अगर वो बंदा गांव से किसी शहर में रिफ्यूज कर जाए तो एट दैट लेवल वहाँ पर वो सिमुलेशन ही कर रहा होता है, वो अपनी नॉर्म्स को उसके साथ अटैच करने की कोशिश करता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है. इन लोकल सेंसेस
Assimilation is that which takes place within the family or group, likely newly married couple adopt the some culture and assimilate one another's. द लोकल लेवल की जब हम बात करते हैं तो ये फैमिली कल्चर्स की बात करता है, लोकल सराउंडिंग्स की बात करता है. एक फैमिली के अंदर जो कपल न्यूली अडॉप्ट किया जाता है वो आपस में एक दूसरे के नॉर्म्स को, कस्टम को, ट्रेडिशन को असिमिलेट करते हैं. कहीं पर वो बॉय अडॉप्ट करता है, कहीं पर वो गर्ल अडॉप्ट करती है, बट दे को एग्जिस्टेड विद देम, लेकिन वो दोनों एक पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के. अब कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इसे सोशली इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये असिमिलेशन का प्रोसेस करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस इसमें प्रीवेल होते हैं, इसमें फॉल करते हैं. एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, हम पहले ये देखते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है. अब जैसा कि हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है, आप कह लें कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हो सकती है, ग्रुप ऑफ आप कह लें कि बिलोंगिंग्स हो सकती हैं. लेकिन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटल ही इंस्टीट्यूशंस होंगे. तो यहाँ पर डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है. तो लेट्स देखते हैं कि फर्स्ट क्या बात करते हैं हम. तो हम देखते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं बेसिकली. तो सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस. यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशंस होंगे, सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली, तो डेफिनेटली ऑल द फैमिलीज हैव कॉमन सेंसेस. कि जो फैमिली की बात करेंगे, फैमिली का सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो फैमिली में सबके एक ही नॉर्म्स होते हैं. उस कंट्री के नॉर्म्स उस फैमिली जैसे ही होते हैं, उस सिटी के नॉर्म्स ऑफ फैमिली के एक जैसे पाए जा रहे होते हैं. अगर हम किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, कि स्कूल की बात करते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो उस सोसाइटी का रिलीजियस जो होगा, सबके वो जो नॉर्म्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे. अगर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो उस कंट्री के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट होगा, सबके नॉर्म्स एंड कस्टम एंड ट्रेडिशंस सब सेम होंगे. तो लिहाजा जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास पाए जाते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, फॉर अ कॉमन एम ऑफ लाइफ. These institutions are a part of the social order of a society and they govern behavior and expectations of individuals. यहाँ पर individuals की जो behaviors हैं वहाँ पर उन्हें govern किया जाता है, और यहाँ पर जो सोशल पोजीशंस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, उनका रिलेशंस होता है, परफॉर्मेंस होती है एक सोशल रोल के साथ. कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है, किसी भी तरह का जो इंस्टीट्यूशन होता है, वो उस ग्रुप के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो उस सोसाइटी में प्रीवेल करते हैं. किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो सोसाइटी है वो काम करती है उन लोगों के तहत जो लोग उस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बढ़ रहे हैं. तो एक इंस्टीट्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, किस तरह से हम एक इंस्टीट्यूट को डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ पर ये करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं. एक तो ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पर्पोजिव होते हैं, ये पर्पोजिव होते हैं, आप कह लें कि एक्सप्रेसिव होते हैं. फिर दूसरा ये है कि इनके कुछ परमानेंट कंटेंट भी होते हैं. ठीक है, कि इनकी जो फिक्स नॉर्म्स होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं इंस्टीट्यूट की, वो कंफर्म होती हैं, उसके बगैर ये एग्जिस्ट नहीं करते. नंबर 3 पर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये एक स्ट्रक्चर्ड एंड डेवलप्ड परफॉर्म के अंदर आते हैं. ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है, ये एक यूनिफिकेशन के अंदर प्रीवेल करते हैं. और ये ज़रूरी होता है कि इनके सम नॉर्म्स हों, इनकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हों. ये भी ज़रूरी होता है किसी इंस्टीट्यूट के लिए कि अगर किसी इंस्टीट्यूट की कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई कस्टम्स नहीं है, तो देन वी कैन नेवर एवर से दैट दिस इज़ अ इंस्टीट्यूट. तो हम उस नॉर्म्स हम लोग जो हैं अपने नॉर्म्स की, कस्टम की, वैल्यूज़ की, ट्रेडिशंस की वजह से जाने जाते हैं. तो इसी तरह इंस्टीट्यूट की भी बुनियाद जो होती है उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि उसके भी कोई रूल्स हों, उसके भी कोई वैल्यूज़ हों, उसकी जो नेसेसरली इम्प्लीमेंट की जा रही हो. अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो नहीं प्रीवेल करेंगे. तो हमारे पास मेजर्स जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे पास 6 किस्म टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 पे फैमिली इंस्टीट्यूट होते हैं. आप कह लेंगे जो फैमिली होती है हमारी, उसका वो एक इंस्टीट्यूट के तौर पर रन की जाती है. फिर हमारा एजुकेशन सेक्टर और बजाते खुद जो एजुकेशन होती है ये भी एक इंस्टीट्यूट के तौर पर काम करती हैं. फिर हमारा जो रिलीजन होता है इसके ऊपर भी हम डिपेंडेंसी जाहिर करते हैं, इसके भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, इसे भी हम शैटर नहीं कर सकते. ये भी एक इंस्टीट्यूट के तौर पर काम करता है. यहाँ हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशंस होती हैं उसकी में हमने एक सेट पैटर्न बनाया होता है किसी कंट्री का, तो वो भी हमारे पास इंस्टीट्यूट के तौर पर काम करती हैं. हमारी पॉलिटिकल हो या सोशल इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से रन किए जाते हैं. जैसे कि आप कह लें कि हमारे बहुत से ऐसे अदारे हैं जो माजूरों के लिए काम करते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट रन करती है. बहुत से ऐसी फर्म्स हैं जो गरीबों के लिए काम करती हैं, फर्म तो नहीं कह सकते लेकिन बहाली के लिए, माजूरों की बहाली के लिए,
माजूर लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत से फंडिंग ऐसी हैं, उनको मिलती हैं, नहीं मिलती, लेकिन उनके सेट नॉर्म्स हमारे पास पाए जाते हैं, उनके कस्टम्स ट्रेडिशन हमारे सामने पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अकल्चरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे वेरी करता है। अकल्चरेशन हम कहते कैसे हैं कि आप कह लें कि एक बंदा जो है कि अकल्चरेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर एक कल्चर का पर्सन दूसरे कल्चर्स में आ जाता है, उसके लिए वो एलियन होता है, लेकिन आप कह लें कि एक लार्ज स्केल्स के ऊपर वो अपनी चीज़ों को रिप्लेस कर देता है, तो वहाँ पर वो अकल्चरेशन के प्रोसेस में फॉल करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अकल्चरेशन इज़ व्हाट हैपन्स टू एन इंटायर कल्चर व्हेन एलियन ट्रेट्स diffuse in on a large scale and substantially replace traditional cultural patterns। अगर आप एक कल्चर को छोड़ देते हैं और दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर अकल्चरेशन के प्रोसेस को हम प्रीवेल करते हैं। आफ्टर several centuries for relentless pressure from European Americans to adopt their ways, Native American cultures have been largely acculturated। आप कह लें जी कि बेसिक जो कल्चर था अमेरिका का वो चेंज कर दिया गया, और रीज़न क्या है, एक प्रेशराइज उन्हें किया जाता है। आप कह लें कि जब एक पर्सन अपना मुकम्मल तौर पर कल्चर को ड्रॉप आउट कर देता है तो तब वहाँ पर अकल्चरेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर होता है। तो होता क्या है अमूमन हमारे साथ कि मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन इंडियंस नाउ स्पीक इंग्लिश इंस्टेड ऑफ देयर एंसेंट्रल लैंग्वेज, वेयर यूरोपियन स्टाइल क्लास गो टू स्कूल टू लर्न अबाउट द वर्ड फॉर्म European perspective and see themselves as being a part of the broader American society। अगर हम स्टार्टिंग की यूरोपियन आप कहने के अमेरिकन लोगों को देखें तो वहाँ पर रेड इंडियन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पाया जाता था, लेकिन हम बाद में अगर तारीख को देखते रहते हैं तो वहाँ पर उनके पुराने कल्चर्स को बिल्कुल असिमिलेट कर दिया गया वहाँ से, बिल्कुल अब आप कह लें कि एलिमिनेट कर दिया गया, वहाँ से रिमूव कर दिया गया। और जब हम कल्चर्स की आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, इंटायरली कल्चर्स एक एलियन बना देते हैं, तो तब हम वहाँ पर कल्चरेशन में आते हैं। As a Native American society continue to acculturate, most are experiencing a corresponding loss of their traditional culture despite efforts of preservations in their communities। बजाय कि वो अपनी चीज़ों को महफूज कर पाते, लेकिन वो सब कुछ खो बैठे वहाँ पर, और जो खोने का जो प्रोसेस है कल्चर का वहाँ पर अकल्चरेशन से प्रीवेल होता है। फिर ट्रांस कल्चर्स क्या होता है, या ट्रांस कल्चरेशन हमारे पास क्या होती हैं। Trans culture is what happens to an individual when he or she moves to another society and adopts its culture। आप कह लें जी कि अपनी जब सोसाइटी एक बंदा जो है आप कह लें जी कि एक पर्सन जो है वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाता है, पहले तो हम देखते हैं कि जो अकल्चरेशन है वहाँ पर हमें फोर्स कर दिया जाता है या हमारी नॉर्म्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन ट्रांस कल्चर्स में ये होता है कि आप कह लें कि वो अपना कल्चर ही चेंज कर लेता है, वो विलिंगली आप कह लें कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं या जो एक पर्सन जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री गया होता है उस कंट्री के कल्चर को आप कह लें कि विलिंगली आप कह लें कि कोर हार्टेडली अडॉप्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ये आप कह लें कि इन कंट्रास्ट पीपल हु लिव एज सोशली आइसोलेटेड expatriates in a foreign land for years without desiring or expecting to become assimilated click this icon to hear the preceding term pronouns participants in the host culture are not transculturing। इट्स मीन आप कह लें कि अगर एक पर्सन जो है कि वो अपने कल्चर्स को स्टॉप कर देता है और बिल्कुल कॉपी कर लेता है उस कल्चर को, जिस कल्चर में जिस कंट्री में गया होता है, तो वहाँ पर वो ट्रांसकल्चरेशन के प्रोसेस को पूरा करता है। लेकिन अगर एक पर्सन जो है वो आउट कंट्री गया है, माइग्रेट भी हुआ है, लेकिन उनके कल्चर को अडॉप्ट नहीं करता, तो वहाँ पर ट्रांस कल्चर का कॉन्सेप्ट नहीं प्रिवेल होता, वहाँ पर वो अपने कल्चर को ही प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इस कल्चर्स के कॉन्सेप्ट को भी देखना है कि एक तो कल्चरेशन है, एक ट्रांस कल्चरेशन है। ट्रांस कल्चरेशन में कि हम ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक कल्चर से दूसरे की तरफ। तो फिर हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं जब हम कल्चर चेंज करते हैं, ठीक है, कि कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास सबसे बड़ी बात जो है क्या सोशल प्रॉब्लम इज़ एनी डेविएंट बिहेवियर इन अ डिसअप्रूव्ड डायरेक्शन ऑफ सच डिग्री दैट इट एक्सीड्स द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पर कहते हैं जी, लैंडबर्ग कहता है कि हम जो हमारी टॉलरेट करने की जो लिमिट है अगर हम उसे क्रॉस कर देते हैं तो फिर हमारे साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कि 3 चीज़ें बेसिक होती हैं जिन्हें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। समथिंग शुड बी डन टू चेंज द सिचुएशन, कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि हम सिचुएशन को चेंज कर दें। टू एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर हैज़ टू बी चेंज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसे इस्तेमाल करें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और अगर आपकी प्रॉब्लम अनडिज़ायरेबल है तो उसे डिनाई कर दें।
द सिचुएशन रिगार्डेड अ प्रॉब्लम इज़ अनडिज़ायरेबल बट इज़ नॉट इनएविटेबल। आपकी जो चीज़ें हैं वो डिज़ायरेबल इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करें। आपके रीज़नेबल लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए जो आपके कल्चर्स को साथ में मेंटेन रखने में हेल्प करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। और होप्स आपको बात समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।